Hello, welcome to AK Biology. I am your educator Asit and today I will teach you about the root. Introduction. Root is the non-green underground cylindrical structure forming the descending water-absorbing axis of the plant, which give rise to endogenous branches and does not possess nodes, leaves और buds. रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का जो कि नॉन ग्रीन होता है एंड इसके नोड्स लीव्स और बॉड्स नहीं होते हैं which is mainly responsible for the water absorption and the encouragement of the plant to the soil. Then parts of a typical root. Root में कितने parts होते हैं? A typical root possesses 5 parts. First, root cap, then growing point or meristematic zone or the zone of cell division, then region or the zone of elongation, then root hair zone, then region or zone of maturation. ये डायग्राम दिया हुआ है regions of the root. Then root cap. Root cap, it is a thimble shaped or cap like parenchymatous multicellular structure which covers the root meristem. Cells of the root cap possess starch grain. Root cap के जो सेल होते हैं ये starch grain कंपोज करते हैं and it is a cap like structure which is parenchymatous in nature. Growing point or meristematic zone. Meristematic zone, it is about 1 mm in length. The growing point of the root is subterminal. It is made up of compactly or closely arranged small thin-walled isodimetric and meristematic cells which have dense cytoplasm. It is made up of meristematic cells which have dense cytoplasm. They undergo repeated division. This zone में repeated division होता है. ये 1 mm length है. Region or zone of elongation. It is about 4 to 8 mm in length. The cells of this region are newly formed cells. ये जो region है zone of elongation, इसका cells are newly formed cells and which lost the power of division. This increases the length of the root. This zone increases the length of the root. Then root hair zone. It also represents the zone of differentiation or maturation because different type of primary tissues जो कि xylem, phloem, pericycle होते हैं they differentiate or mature in this region. The primary tissues जो होते हैं xylem, phloem, pericycle वो सब this region में differentiate और mature होते हैं. Root hair zone is 1 to 6 centimeter in length. ये जो root hair zone है वो 1 to 6 centimeter का होता है. Some of the outer cells of this zone give rise to lateral tubular outgrowth called root hairs. ये जो इस zone में root hairs होते हैं जो कि tubular outgrowth होते हैं. Most of the water absorption occurs in this region. This region जो कि root hair zone है, this zone में mainly the water absorption mostly takes place. Region of the zone of maturation. Maturation zone. It forms the bulk of the root. The outermost layer of this region has thick-walled or impermeable cells. So this region cannot help in water absorption. Water absorption में ये zone मदद नहीं करता है. Its only function is to anchor the plant firmly in the soil. Soil में plant को encouragement जो देता है वो है region और zone of maturation. Then root systems. कितने टाइप के root system होते हैं? There are 3 types of root system जो कि taproot system, fibrous root system and adventitious root system. Then taproot system. It is a mass of roots which develops from the radicle of the embryo. जो taproot system है
वो रेडिकल अब एम्ब्रियो के जो रेडिकल होते हैं वहां से डेवलप होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए टैप रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड रूटलेट। ये टैप रूट सिस्टम में टैप रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूटलेट ये सब होते हैं। द रेडिकल itself grows off directly into the main or primary root. The persistent primary root is known as taproot. जो कि प्राइमरी रूट होते हैं, मेन रूट वो है टैप रूट। टैप रूट बिकम्स ग्रेजुअली नैरो टुवर्ड्स द टिप। टिप से टैप रूट नैरो होते हैं। Taproot becomes gradually narrow towards the tip. Secondary and tertiary roots are formed in acropetal succession. Secondary and tertiary जो root होते हैं वो formation होता है acropetal succession में। Acropetal succession क्या होता है ना, youngest towards the growing point and oldest towards the base of the main root। growing point towards youngest होते हैं। देन टैपरूट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, एक होता है डीप फीडर देन और एक होता है सरफेस फीडर। देन मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट। टैपरूट के कितने टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं? टैपरूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एरेशन। स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, देन एरेशन के लिए टैपरूट मॉडिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लेसी टैपरूट। द टैपरूट बिकम्स सोलेन एंड फ्लेसी विद द स्टोर्ड फूड। फ्लेसी किस वजह से होता है? बिकॉज दे कंपोजेस द स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड रिजर्व होता है इसलिए वो सोलेन और फ्लेसी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप, द फ्लेसी टैपरूट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फ्लेसी टैपरूट कितने तरह के होते हैं? कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म एंड ट्यूबरस रूट। कोनिकल क्या होता है? हियर द फ्लेसी टैपरूट रिजेंबल्स ए कोन। कोन की तरह होता है, दैट इज थिकेस्ट टुवर्ड्स द बेस एंड ग्रेजुअली टेपरिंग टुवर्ड्स द अपेक्स। अपेक्स टुवर्ड्स टेपरिंग होते हैं, वो है कोनिकल। इसकी एग्जांपल है कैरोट। देन फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म कैसा होता है ना? फ्यूजिफॉर्म फ्लेसी रूट इज लाइक ए स्पिंडल। स्पिंडल शेप के होते हैं, दैट इज थिकेस्ट रफली इन द मिडिल एंड नैरो टुवर्ड्स बोथ द बेस एंड द अपेक्स। बोथ बेस एंड अपेक्स के टुवर्ड्स नैरो होता है, बट रफली थिक एट द मिडिल। देन इसके एग्जाम्पल होते हैं रेडिस। देन नैपिफॉर्म। नैपिफॉर्म क्या होता है? द फ्लेसी रूट इज वेरी थिक एट द बेस। बेस के टुवर्ड्स थिक होते हैं एंड इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल। ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है एंड सडनली थिन्स टुवर्ड्स द अपेक्स। टुवर्ड्स द अपेक्स सडनली थिन हो जाता है। एग्जाम्पल टर्निप, जो कि बीट होते हैं। बीट, ब्रासिका रपा जो सरगम होते हैं, वो है टर्निप एग्जाम्पल। ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट दे आर थिकेंड टैपरूट। ट्यूबरस रूट होता है थिकेंड टैपरूट which does not assume any definite shape। इसके डेफिनाइट शेप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, दैट इज नोन एज 4 o'clock प्लांट। देन मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट ब्रांचेस, वो होता है nodulated root and pneumatophores. Nodulated root occur in papilionaceous और लेगुमिनस प्लांट्स। जो कि लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वह नोडुलेटेड रूट दिखाई देता है, लाइक पी, ग्राम, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम्स द प्राइमरी रूट डेवलप्स numerous small or large irregular swellings called root nodules और tubercles। रूट नोड्यूल्स क्या होता है ना, कि जो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम्स प्राइमरी रूट डेवलप करते हैं some irregular swellings, these are known as root nodules। root nodules help in nitrogen fixation। then pneumatophores, they are breathing root or respiratory root which are found in plants growing in mangroves or saline swamps near the seashore। एग्जाम्पल अविसिनिया। अविसिनिया जो कि हमारे सी शोर के पास में होता है,
जो कि मैनग्रोव्स और सलाइन स्वाम्स होते हैं, वो क्या रखते हैं ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट which are known as pneumatophores. Then fibrous root system. Fibrous root system found in place of taproot system in many monocot. Monocot plant में fibrous root system दिखाई देते हैं. A number of thin thread-like branched root develop from the base of the stem. From the base of the stem, thin thread-like branch root जो होते हैं वो fibrous root system होते हैं. It gives good anchorage to the plant, help in proper absorption of water and minerals. Example, wheat and barley. Then adventitious root system. Adventitious root system क्या होते हैं? Roots that grow from any part of the plant other than radicle or its branches are called adventitious root. Adventitious root क्या होते हैं ना, जो रूट रेडिकल से नहीं होते हैं, एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से होते हैं, वो होता है एडवेंटिटियस रूट. जो रेडिकल से होता है वो है टैप रूट, जो कि प्राइमरी रूट और मेन रूट होता है. ए मास ऑफ एडवेंटिटियस रूट along with their branches constitute an adventitious root system. कुछ एडवेंटिटियस रूट along with their branches वो सब मिलके एडवेंटिटियस रूट सिस्टम बनाते हैं. देन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स. एडवेंटिटियस रूट किस तरह से मॉडिफाई होता है? फॉर स्टोरेज, फॉर मैकेनिकल स्ट्रक्चर और फॉर एनी वाइटल फंक्शंस. फॉर स्टोरेज किस तरह से ना, ट्यूबेरस रूट्स होते हैं, फासिकुलेटेड रूट्स होते हैं, पाल्मेट रूट्स होते हैं, वो सब फॉर स्टोरेज होते हैं. एडवेंटिटियस रूट सिस्टम फॉर स्टोरेज. ट्यूबेरस रूट किस तरह के होते हैं ना, द सोलेन रूट डू नॉट एज्यूम ए डेफिनेट शेप. ट्यूबेरस रूट होते हैं, इसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो सिंगली रहते हैं. एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो जो कि इपोमिया है, जो ये एक ट्यूबेरस रूट है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. देन फासिकुलेटेड रूट. फासिकुलेटेड रूट को क्या होते हैं? द सोलेन रूट्स और रूट ट्यूबर्स अकर इन क्लस्टर्स. जो रूट क्लस्टर से होते हैं, जो सोलेन रूट और रूट ट्यूबर क्लस्टर से होते हैं, वो होते हैं फासिकुलेटेड रूट. एग्जाम्पल जो कि डालिया ले सकते हैं और एस्पैरागस वो भी. देन पल्मेट रूट. पल्मेट रूट क्या होते हैं? द फ्लेशी रूट आर थिकेंड लाइक द पाम ऑफ द ह्यूमन हैंड. जो ह्यूमन हैंड के पाम होते हैं वो थिकेंड होते हैं, इसी तरह फ्लेशी रूट होते हैं थिकेंड. सो दीज आर नोन एज पल्मेट रूट. एग्जाम्पल होते हैं अर्चिस. अर्चिस प्लांट में दिखाई देते हैं. देन फॉर मैकेनिकल स्ट्रक्चर. मैकेनिकल स्ट्रक्चर में होते हैं प्रॉप और पिलर रूट, स्टिल्ट रूट, क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट. प्रॉप और पिलर रूट क्या होते हैं? जो कि हमारे बनियन ट्री में दिखाई देते हैं. दे आर थिक पिलर लाइक एडवेंटिटियस रूट व्हिच ग्रो फ्रॉम एंड सपोर्ट हेवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री. बनियन ट्री में जो होते हैं हेवी ब्रांचेस, हेवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, इसको सपोर्ट देने के लिए होता है प्रॉप और पिलर रूट. देन स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट क्या होते हैं ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रेस रूट्स. दीज आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट. ये भी सपोर्टिंग रूट होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, which develop obliquely from the basal nodes of the stem. basal nodes से obliquely वो सब स्टिल्ट रूट निकलते हैं. एग्जाम्पल होता है सुगार केन में, मेज में, सरगम में, ये सब स्टिल्ट रूट होते हैं. देन क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट. दीज आर नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंटिटियस रूट. एब्जॉर्प्शन में इनका कोई रोल नहीं है, ये नॉन एब्जॉर्प्टिव होते हैं, व्हिच आर फाउंड इन क्लाइंबर्स. एग्जाम्पल होते हैं बीटिल जो कि पान है हमारा, टेकोमा, देन फाइकस, ये सब होते हैं
क्या होता है, ये सब होते हैं क्लाइंबिंग रूट। देन वाइटल फंक्शन, कुछ वाइटल फंक्शन होते हैं। वाइटल फंक्शन एग्जांपल असिमिलेटरी रूट, हॉस्टोरियल और पैरासाइटिक रूट, एपिफाइटिक और एरियल रूट। असिमिलेटरी रूट इस ट्रापा जो कि वाटर चेस्टनट, इसमें असिमिलेटरी रूट होता है। दे आर ग्रीन रूट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। असिमिलेटरी रूट एग्जांपल ट्रापा। हॉस्टोरियल और पैरासाइटिक रूट, these are also called as sucking root और suckers, example कुस्कुटा में होता है। these root occur in parasitic for absorbing nourishment from the host, होस्ट से नरिशमेंट एब्जॉर्प्शन के लिए ये सकिंग रूट होते हैं, जो कि हॉस्टोरियल और पैरासाइटिक रूट होता है। एग्जाम्पल कुस्कुटा। देन एपिफाइटिक और एरियल रूट, these roots occur in epiphytes, plants living on the surface of other plant for shelter and space. These are called as space parasites also. Epiphytic root, these are seen in Aldrovanda, Dendrobium, etc. These एपिफाइटिक प्लांट क्या तो होते हैं ना, प्लांट लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट फॉर शेल्टर एंड स्पेस। ये प्लांट अन्य प्लांट में फॉर शेल्टर एंड स्पेस निर्भर करता है, इसीलिए इसको एपिफाइटिक रूट इनका होता है, जो कि अल्ट्रोवांडा में है तो डेंड्रोबियम में भी होता है। सो नेक्स्ट, thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and also follow us on Instagram। AK बायोलॉजी का पेज होता है, इसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।